سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سرگودا میں بھلوان کے نواحی علاقے چبا پرانا میں سیلابی پانی سے متاثرہ گھر کی چھت گر گئی۔ چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر باپ بیٹے سمیت 6 افراد شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر ملبے تلے دبے افراد کو نکال لیا۔ زخمیوں کو طبی امداد کے بعد DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب اپڈیٹ کریں گے آپ کو اس حوالے سے۔ سرگودا میں بھلوان کے نواحی علاقے چبا پرانا میں سیلابی پانی سے متاثرہ گھر کی چھت گر گئی۔ چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر باپ بیٹے سمیت 6 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر ملبے تلے دبے افراد کو نکال لیا ہے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے بعد DHQ سرگودا منتقل کر دیا گیا ہے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے بعد DHQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر باپ بیٹے سمیت 6 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر ملبے تلے دبے افراد کو نکال لیا ہے۔ سرگودا میں واقعہ پیش آیا ہے۔ بھلوان کے نواحی علاقے چبا پرانا میں سیلابی پانی سے متاثرہ گھر کی چھت گر گئی۔ چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر باپ بیٹے سمیت 6 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ ریسکیو نے موقع پر پہنچ کر ملبے تلے دبے افراد کو نکال لیا۔ زخمیوں کو طبی امداد کے بعد DHQ سرگودا منتقل کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں پرنسپل گورنمنٹ خواجہ فرید پوسٹ گریجویٹ کالج ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی بھی میدان میں آ گئے۔ کہتے ہیں کہ 15 ستمبر سے یونیورسٹیز اور کالجز کھولنے کا فیصلہ قابل تعریف ہے۔ گورنمنٹ خواجہ فرید پوسٹ گریجویٹ کالج رحیمیار خان کے پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی نے یونیورسٹیاں اور کالج کھولنے کے حکومتی فیصلے کو سراہا ہے۔ کہتے ہیں کئی ماہ تک تعلیمی ادارے بند رہنے سے طلبہ و طالبات کا بہت تعلیمی نقصان ہوا۔ کالج کے 7,000 طلبات کے درمیان سماجی فاصلے کو ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ کل نان ٹیچنگ سٹاف کی شروع کر دی جائے گی۔ ہم کلاسوں کو ذرا مینیمائز کر لیں، یعنی ایک دن میں فرض کریں کہ ہمارے 6 لیکچر ہیں تو طالب علموں کے لیے 3 لیکچر رکھے، ان کو بھی جو ہے نا جی وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو فاصلہ تو یقیناً وہ رکھنا پڑے گا۔ اس کے لیے جو ممکنات ہوں گے اس پہ ہم عمل کریں گے اور کوشش کریں گے کہ طالب علموں کی صحت کا خیال رکھا جائے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی کا مزید کہنا تھا کہ SOPs پر عمل کر کے وائرس سے مکمل چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ کیمرامین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی، رحیمیار خان۔ دوسری جانب میاوالی کے شہریوں نے بھی مرحلہ وار تعلیمی ادارے کھولنے کے حکومتی فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ میاوالی کے شہریوں نے اسکول کھولنے کے حکومتی فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اسکول بند ہونے سے بچوں کا تعلیمی نقصان ہو رہا تھا۔ مرحلہ وار کلاسز کا آغاز حکومت کا احسن اقدام ہے۔ شہریوں نے کہا کہ حکومت کورونا SOPs پر عمل درآمد کو ہر صورت یقینی بنائے تاکہ بچے وبائی مرض سے محفوظ رہ کر تعلیم حاصل کر سکیں۔ کورونا کے کیسز اب آئے روز کم ہوتے چلے جا رہے ہیں اور بچوں کا مستقبل بھی تو دیکھنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے یہ جو مرحلہ وار اسکول اور کالجز کھولنے کا فیصلہ لیا گیا ہے انتہائی احسن اقدام۔ شہریوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسکول بند ہونے کے باعث بچوں کا تعلیمی نقصان تو ہو ہی رہا تھا، اس کے ساتھ بچے منفی سرگرمیوں کی طرف بھی راغب ہو رہے تھے۔ اب اسکول کھلنے کے بعد منفی سرگرمیوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ جیسے ہمارے لیے احتیاط ضروری ہے، اسی لحاظ سے اگر ہم اپنے مستقبل کو دیکھیں تو یہ بھی بہت ہی ضروری ہے۔ بچوں کے لیے سکول کا کھولنا ایک ایسا قدم ہے اور ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہمیں اپنے تحفظات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ تعلیمی اداروں SOPs پر سختی سے عمل کرایا جائے تاکہ بچے وبائی مرض سے محفوظ رہیں۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاوالی۔ حکومت کا 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ، DG خان کے بچے بھی اسکول جانے کے لیے بےتاب ہیں۔ حکومت کے 15 ستمبر سے تعلیمی ادارے کھولنے کے فیصلے کے بعد والدین اور بچوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ والدین کا کہنا تھا کہ کورونا کی وجہ سے بچوں کا تعلیم میں بہت نقصان ہوا ہے۔ وہ بچوں کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے SOPs کے مطابق اسکول بھیجیں گے۔ تنگ کرتے تھے اور بور ہوتے تھے، یہ روتے تھے کہ گھر میں کورونا کی وجہ سے باہر بھی نہیں نکلتے تھے اور اب ان کو گھمانے آئے ہیں، ماسک بھی پہنائیں گے اور اسکول ٹائم پہ بھی جائیں گی۔ بس اسکول کھل جائے انشاءاللہ جلد۔ دوسری جانب اسکول کھلنے کی خبر سن کر بچے بھی خوش نظر آئے۔ بچوں کا کہنا تھا کہ اسکول جا کر کورونا کے دوران ہونے والے تعلیمی نقصان کا ازالہ زیادہ محنت کر کے پورا کریں گے۔ والدین اور اسکول انتظامیہ کے بعد اسٹیشنری مالکان میں بھی خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ 5 ماہ بعد کاروبار دوبارہ شروع ہونے پر خدا کا شکریہ ادا کیا۔ 8ویں تک اسکول 22 ستمبر اور 9ویں سے 5ویں تک اسکول 30 ستمبر کو کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکومتی فیصلے پر والدین نے تو خوش ہونا ہی تھا، حیران کن طور پر ننھے بچے بھی اسکول جانے کے لیے بےتاب ہیں۔ والدین کا کہنا ہے کہ بچوں کی تعلیم کا بہت نقصان ہو چکا ہے، شکر ہے حکومت نے اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا۔ ایکسائٹیڈ ہیں بہت، فرینڈ سے ملیں گے، ٹیچر سے ملیں گے، اسکول بھی مس کر رہے تھے تو کلاس بھی سب کچھ۔ 6 ماہ بعد بچے اسکول جائیں گے، ایک تو پڑھائی کا بہت حرج ہو گیا
और ऊपर से जो हमारे दिमाग का हर्ज जो है वो बेशुमार, क्योंकि बच्चे घर बैठ के बिल्कुल एक तरह बेकार ही हो गए। निजी स्कूल मालकान का कहना है कि स्कूल खोलने का फैसले पर वो खुश हैं। बच्चों की सेहत अव्वलीन तरजीह है। एसओपीज पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। अपने तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स को लेते हुए हम आगे इसको फॉलो करेंगे। जितने एसओपीज स्कूल्स के लिए उन्होंने दिए हैं, हम उनको तमाम उन एसओपीज को फॉलो किए जाएंगे इंशाल्लाह। और अपने स्टाफ को, अपने लोअर स्टाफ को, अपनी तमाम उसको हम इस चीज़ की ट्रेनिंग देंगे ताकि मज़ीद से मज़ीद एजुकेशन को हम बेहतर बना सकें। स्कूल खोलने के फैसले से स्टेशनरी मालकान में खुशी की लहर दौड़ गई। कहते हैं कारोबार ठप हो गया था, अब रोजी तो कमा सकेंगे। कैमरा टीम के हमरा लिशबा आसिफ, मुल्तान। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जाहिर अख्तर जमान का दौरा मुल्तान। निश्तर यूनिवर्सिटी आमद पर सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब अजमल भट्टी, सीओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक ने इस्तकबाल किया। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जाहिर अख्तर जमान मुल्तान पहुंच गए। निश्तर यूनिवर्सिटी में आमद पर उनका इस्तकबाल सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब अजमल भट्टी, सीओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक ने किया। जाहिद अख्तर जमान ने सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब अजमल भट्टी के हमरा निश्तर में सेहत की सहूलियात के बारे इजलास में शिरकत की, जिसमें मुल्तान डिवीजन, भावलपुर डिवीजन, डीजी खान डिवीजन के महकमा सेहत के अफसरान मौजूद थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जाहिद अख्तर जमान ने कहा कि सेक्रेटरीट 15 अक्टूबर से मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाएगा। मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज की तैनाती का अमल शुरू हो गया है। डिफरेंट सेक्रेटरीज की पोस्टिंग हो गई है, तो इंशाल्लाह इन्होंने काम शुरू कर दिए है। तो अब हम अपने इंटरनल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। तो एक नया महकमा जब बनता है तो उसके अंदर बेसिक इश्यूज भी आते हैं। तभी हम प्लानिंग के फेज से गुजरे हैं। तो इंशाल्लाह महीने डेढ़ के तकरीबन हमने 15 अक्टूबर अपनी एक डेडलाइन रखी हुई है, जिसके बाद हम एक्टिवेट हो जाएंगे, काम शुरू कर देंगे। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब अजमल भट्टी ने कहा कि इजलास में जनूबी पंजाब के हवाले से जारी प्रोजेक्ट्स के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने महकमा सेहत की मुख्तलिफ स्कीमों को नए माली साल के बजट में शामिल करने का कहा है। जो साउथ पंजाब के मसाइल हैं वो आपकी दहलीज पर ही हल होंगे। इसी तरीके से जो आपके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उन्होंने हमें ये डायरेक्शंस दिया है कि आप इन सब को रिव्यू करें और इनका एक साउथ पंजाब के हवाले से एक कैरेक्टर बना के इनको अगले साल के एनुअल डेवलपमेंट प्लान में हम शामिल करेंगे। इजलास में सीओ हेल्थ डॉक्टर अरशद मलिक, एमएस निश्तर डॉक्टर शाहिद महमूद बुखारी, वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी डॉक्टर एजाज अहमद मसूद, सीओ डीजी खान डॉक्टर खलीद, सीओ राजनपुर डॉक्टर मोहम्मद अली, सीओ लिया डॉक्टर अमीर अब्दुल्ला, सीओ लोधरा डॉक्टर सज्जाद हुसैन, सीओ खानेवाल डॉक्टर मारिया भी शरीक थे। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज मुल्तान डिवीजन डॉक्टर वसीम रिमजी, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज भावलपुर डॉक्टर तनवीर, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डीजी खान डॉक्टर जफर इकबाल, एमएस चिल्ड्रन हॉस्पिटल डॉक्टर जाहिद चौधरी भी शरीक हुए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ बिलाल नियाजी, मुल्तान। औलिया में सेहत की सहूलियात की होगी फरावानी। मुल्तान निश्तर 2 की 463 केनाल 18 मरले जमीन पर तामीराती काम तेजी से जारी है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब के लिए सेहत के मैदान में संगे मील की अहमियत रखने वाले मेगा मंसूबे पर काम जारी है। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने निश्तर 2 की साइट का विजिट किया। कमिश्नर को इस मौके पर प्रोजेक्ट बारे ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर का कहना था कि मंसूबा जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के बाइस अहमियत इख्तियार कर गया है। वजीर आला पंजाब मंसूबे की तकमील में जाती दिलचस्पी रखते हैं। सेहत है, हेल्थ है और तमाम एजुकेशन जितनी भी जो सर्विसेज हैं जो आवाम की ज़रूरत है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की पहली तरजीह है। और वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ये जो प्रोजेक्ट है ये उनके वेरी क्लोज टू हिज हार्ट और फंडिंग का कोई इशू नहीं है। फोकल पर्सन निश्तर 2 डॉक्टर एजाज मसूद का कहना था कि पहले मरहले में 500 बेड्स अस्पताल और रिहायशी ब्लॉक तामीर किए जा रहे हैं। 2.5 अरब रुपए आईडैप के हवाले किए जा चुके हैं। खुदाई मुकम्मल 4 दीवारी की तामीर शुरू की जा चुकी है। जो बेसमेंट है, जो बुनियादें हैं वो मुकम्मल हो चुकी हैं और हम प्लेन तैयार कर रहे हैं जिसके ऊपर वाला स्ट्रक्चर सारा बनना है। इसका इस वक्त जो सेकंड ग्राउंड फ्लोर है, सेमी ग्राउंड जो जिसे कह सकते हैं, वो अब इंशाल्लाह ताला उसकी हम पिलर्स तैयार कर रहे हैं और अनकरीब उसका जो हमारी टाइम लाइन है ना उसके मुताबिक हम 100% उस पर जा रहे हैं। कमिश्नर ने कंट्रैक्टर को फेज 1 बरवक्त मुकम्मल करने की हिदायत की। इस मौके पर डायरेक्टर डेवलपमेंट वकास खाकवानी भी मौजूद थे। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। दूसरी जानिब कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की ज़ेर सदारत डेंगू पोलियो कंट्रोल का जायजा इजलास हुआ। फील्ड टीमों को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत कर दी।
पंजाब में पोलियो केसेस सामने आने पर मुल्तान की डिविजनल इंतजामिया मुतहरिक हो गई। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद की ज़ेर सदारत डेंगू पोलियो कंट्रोल जायजा इजलास हुआ। CEO हेल्थ समेत इंतजामी अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद का कहना था कि सूबे को डेंगू और पोलियो से पाक करना हुकूमत पंजाब का अज़्म है। डेंगू कंट्रोल टीम्स फील्ड में नजर आए। रिपोर्टिंग में जालसाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डेंगू कंट्रोल में मुल्तान डिवीजन सूबा भर में टॉप पोजीशन पर होना चाहिए। जदीद एंड्रॉइड सिस्टम के तहत डेंगू के खिलाफ सरगर्मी को पोर्टल पर अपलोड किया जाए। पोलियो कंट्रोल के लिए माइक्रो मनसूबाबंदी करने की जरूरत है। डेंगू पोलियो टीम्स को मॉनिटर करने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाएगा। पोलियो के हवाले से मनफी प्रोपागेंडा करने वालों की हौसला शिकनी की जाए। सैलाब की बात करें और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब का इलाका सैलाब की नजर। डीजे खान समीना की कई बस्तियां भी ज़ेरे-आब। कपास और कमाद की फसलें दरिया सिंध के सैलाब से तबाह हो गई हैं। गाजी खान के इलाके समीना की कई बस्तियां सैलाबी पानी की नजर हो गई। कपास और कमाद की फसलें तबाह, जबकि बस्ती बाई भी शदीद मुतासिर हुई। कई घर मुनहदिम हो गए। अचानक पानी आने से खवातीन और बच्चे घरों में महसूर हो गए। तकरीबन 20-30 बच्चे हैं, अंदर सारा डूबा हुआ है। इसके साथ साथ जो तैर के आए हैं आप? तैर के आए हैं? जी हम तैर के हैं। खवातीन अंदर हैं, बच्चे भी कुछ अंदर हैं, कुछ बाहर निकाल रहे हैं। बस्ती बाई के कई घर सैलाब में डूबने का खदशा अभी भी बरकरार है। इंतजामिया ने कोई इत्तला दी और न ही मुंतखब नुमाइंदे दाद रसी के लिए आए, जिस पर मकीन दोनों से खफा हैं। ये MNA साहब है हमारे इलाके के, सरदार अमजद फारूक साहब खोसा साहब, और MPA हमारे हैं सरदार मोहसिन अता खोसा। कहाँ तक ये दरियाई जो पानी है ये मुकम्मल जो है ना सहली पट्टी जो दरियाई सिंध जो बस्ती भाई के तमाम वासी जो है ना दरिया के किनारे। जो DC साहब जो है ना उसने बयान जो दिया है उसकी तरफ से जो हमारी तरफ से जो मेडिकल कैंप या रिलीफ कैंप लगाने की जो इनकाद करेंगे हम लोग, तो यहाँ इलाकाई सतह पे हमें कोई कैंप नजर नहीं आया। सैलाब से डीजी खान की बस्ती समीना, सादात, बस्ती भाई, पुराना डेरा, सुखेरा अराई और तालिया महर शदीद मुतासिर हुए हैं, जबकि फसलें भी तबाह हो गई। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिनुल मुल्क, डेरा गाजी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सरगोदा के मकीन पीने के साफ पानी को तरस गए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली से 22 यूसिस के फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फाल हो गए हैं। सरगोदा में साफ पानी की फराहमी का देरीना मसला हल न हो सका। शहरी इलाकों में नमक मिला खारा पानी आने से मकीन मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। गुज़िश्ता दौर हुकूमत में साफ पानी की फराहमी के लिए शहर की 22 यूनियन काउंसिल्स में फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए। ताहम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गफलत के बायस 90% फिल्ट्रेशन प्लांट्स अरसा दराज से खराब हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं। भाई साफ पानी कोनी मिल रहा है जी। ते प्लांट ने रख रुपया लाया ते खराब हो गया जी। बड़ी परेशानी है जी। पानी उपलब्ध कोनी पीना से जी। मेहरबानी करो तो ठीक करा के दो ताकि लोग पानी पीवें, ताकि सवाब का कम है जी। शहरियों का कहना है कि वो घरों में आने वाला खारा पानी पीने पर मजबूर हैं। इंतजामी फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फाल करने में नाकाम हो चुकी है। हम जब भी यहाँ पे आते हैं पानी पीने के लिए अपने बच्चों के लिए लेने आते हैं, लेकिन पानी यहाँ बिल्कुल नहीं मिलता। हम मजबूर है, हम कहाँ जाएं। अगर यहाँ का पानी हम जो नलकों से ले तो नमक भरा पानी होता है जिसमें बैक्टीरिया होता है। हमारे बच्चे हमारी फैमिली जो है बीमार हो जाती है। दूसरी जानिब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अफसरान का कहना है कि फंड्स की कमी का सामना है। शहरी इलाकों के तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स को जल्द फाल कर दिया जाएगा। कैमरामैन तनवीर हुसैन के साथ फसीहुल्लाह, सरगोदा। वज़ीर-ए-आला पंजाब के शहर में स्पीडो बस चलाना चैलेंज बन गया। बहावलपुर से डीजे खान लाए गए स्पीडो बस आवाम से दूर। कोरोना हालात में बंद होने वाली स्पीडो बसें ताहाल गैर फाल हैं। बहावलपुर से लाई गई स्पीडो बसें डेरा गाजी खान के अवाम से भी दूर हो गईं। कोरोना के बायस बंद होने वाली स्पीडो बसें खड़ी खटारा बनने लगी। टायर्स खत्म होने के बाद ईंटों के सहारे खड़ी हैं। वीडा सेंटर के खुले ग्राउंड में खड़ी बसों की लेदर सीटें भी खराब हो चुकी हैं। डीजी खान के शहरियों का कहना है कि वजीर आला ने मुल्तान और लाहौर में स्पीडो बस सर्विस शुरू कर दी, लेकिन डेरा गाजी खान की बसों को मट्टी खा रही है। गुज़श्ता हुकूमत ने बहावलपुर और लोधरा में स्पीडो बस सर्विस चलाई, लेकिन तरीके हुकूमत ने बहावलपुर की बसें डीजी खान को दे दी, जो अभी भी बंद पड़ी हैं। कैमरामैन उस्मान नवाज के साथ मोहसिनुल मुल्क, डीजी खान। दूसरी जानिब मुल्तान घंटाघर चौक के अतराफ में तजावुजात की भरमार। सड़क के किनारों पर रेडी बानों का बसेरा। सड़क तंग होने के बाद ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। ये मनाजिर है शहर ओलिया के दिल घंटाघर के, जहां शाम ढलते ही रेहड़ी बानों की कसीर तादाद रोड पर खड़ी हो जाती है, जिसके बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि रोड पहले ही तंग है, रही सही कसर रेहड़ी बानों ने पूरी कर दी है। रात को ये लोग एक बहुत ही आगे रोड पर आ जाते हैं, जिसकी ट्रैफिक को भी दुश्वारी होती है। ट्रैफिक बहुत बारी ब्लॉक भी हो जाती है। हुकूमत को चाहिए कि इनको कोई मुतबादिल जगह दे जहां पर ये गरीब लोग अपने जाके रेडियां लगाए। दूसरी जानिब रेडी वालों का कहना था कि इन्हें मालूम है कि वो गैर कानूनी जगह पर खड़े हैं, मगर रोजी रोटी के लिए रेहड़ियां लगाने पर मजबूर है। हुकूमत रेहड़ी बानों के लिए कोई खास जगह मुख्तस करे ताकि वो भी अपने बच्चों का पेट पाल सके। 500-700-600 ऐसे दिहाड़ी करके जाते हैं। घर का निजाम बड़ी मुश्किल से चलाते हैं। हम इधर से रेहड़ी लेके आते हैं चौक पे,
अगर कोई गाहक लग भी जाता है उसको दे के इधर आ जाते हैं। अगर हम गलत जगह पे खड़े हैं तो हमारे पे पैसे होते और हम दुकान ना कर लेते, हम रोड पे रेडियो थोड़ी ना लगाते। अगर रोड पे हम साइड पे खड़े तो सरकार हमें कोई जगह दी जाए हमें। रेहड़ी बानों की दास्तान अपनी जगह, लेकिन शहर के वस्त में तजावजात इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में अफसरान के दफातर का मामला। सेक्रेटरीज और जनूबी पंजाब के अफसरान के लिए नए ब्लॉक की तामीर आखिरी मरहले में पहुंच गई। सेक्रेटरीज के लिए 5 डबल स्वीट रूम तैयार। सर्किट हाउस में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर का तामीराती काम आइंदा हफ्ते में शुरू कर दिया जाएगा। बिल्डिंग सराय के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब के दफातर के लिए आइंदा हफ्ते में बाकायदा तमीराती काम शुरू कर दिया जाएगा। मुल्तान सर्किट हाउस की तोसी के लिए 3 करोड़ रुपए मालियाती का मंसूबा आखिरी मरहले में दाखिल हो गया। बिल्डिंग के मुताबिक नए ब्लॉक में 5 स्पीड रूम्स मुकम्मल करके सर्किट हाउस इंतजामिया के हवाले कर दिए गए। सर्किट हाउस में 7 नए कमरे आइंदा 10 दिनों में मुकम्मल कर लिए जाएंगे। नए ब्लॉक को बतौर दफातर या रहायशी ब्लॉक इस्तेमाल करने का फैसला एडिशनल चीफ सेक्रेटरी करेंगे। सर्किट हाउस में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के दफ्तर में तामीराती काम की प्लानिंग मुकम्मल कर ली गई। मुमकिना तौर पर सर्किट हाउस के छोटे हॉल रूम को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के दफातर का दर्जा दिया जाएगा। मुमकिना तौर पर जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज की रहाइश भी सर्किट हाउस मुल्तान में ही होगी। किसानों की खुशहाली के लिए अमली इकदाम किए जाएंगे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कहा कि महकमा ज़राअत साउथ पंजाब में ग्रेड 20 की नई पोस्ट पैदा की गई। महकमा ज़राअत के तमाम फॉरम्स को जदीद फॉरम्स में तब्दील किया जाएगा। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इत्तलात जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट में खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें महकमा ज़राअत जनूबी पंजाब के अफसरान ने शिरकत की। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ज़राअत अख्तर जमान का कहना था कि महकमा ज़राअत साउथ पंजाब में ग्रेड 20 की नई पोस्ट पैदा कर दी गई। महकमा ज़राअत के तमाम फॉरम्स को जदीद फॉरम्स में तब्दील किया जाएगा। पानी के ज़िया को रोकने के लिए नए बागात तरजीहन इरिगेशन सिस्टम के तहत लगाए जाएंगे। लोकस कंट्रोल के लिए महकमा ज़राअत ने अच्छा काम किया। मुल्तान जाली ज़रई अद्वियात और खादों का मरकज है। इसके मुकम्मल खात्मे के लिए मुतालिका शोबे को टास्क सौंप दिया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने काम का आगाज कर दिया। कहते हैं छोटे काश्तकारों को रिलीफ फराहम करना तरजीहात में शामिल है। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने मुल्तान में बाकायदा काम शुरू कर दिया। उन्होंने रोही को बताया कि तमाम अफसरान को ट्रेनिंग की जरूरत है। 70% पॉपुलेशन देहातों में रहती है, तो उनके लिए अगर मुझे बिल्कुल इस पे यकीन है कि जितना हम बेहतर इसे कर सकेंगे इस फ्रंट पे, उतना ही अवाम के लिए भी अच्छा होगा, उतना ही लोगों के लिए अच्छा होगा। साकिब अली अतील का कहना था कि अफसरान की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया जा रहा है। ज़राई शोबे में टीम वर्क के तौर पर काम करेंगे और बेहतर नताइज देंगे। पे बैठे हैं, नजदीक बैठे हैं, तो आपके लिए कंप्लेंट सुनना भी आसान होगा। हमारे दरवाजे अवाम के लिए खुले होंगे। वैसे हमेशा मेरा तो ज़ाती तौर पर रहा है, लेकिन अब हुकूमत भी यही चाहती है कि अवाम को हमेशा हम सुनेंगे, फार्मर्स को सुनेंगे, उनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर इंशाल्लाह हम हल करेंगे। साकिब अली अतील का मजीद कहना था कि बेहतर कोऑर्डिनेशन और फास्ट ट्रैक सरगर्मियों से अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। महकमा ज़राअत के तमाम फार्म्स का रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए हिदायत कर दी गई है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, मुल्तान। ज़राअत के हवाले से आपको बताएं, फोर्ट अब्बास में असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीम मोहम्मद यासीन ने खबरदार कर दिया। किसानों को बीमारियों से बचाव के लिए बरवक्त स्प्रे की हिदायत कर दी। फोर्ट अब्बास में हालिया बारिशों के बाद सफेद मक्खी और गुलाबी सूंडी का हमला भी बढ़ गया है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीम मोहम्मद यासीन का रूही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि काश्तकार सफेद मक्खी और गुलाबी सूंडी के खात्मे के लिए बरवक्त स्प्रे करें, क्योंकि कपास की फसल अहम मराहिल में दाखिल हो चुकी है। जैसा कि अभी आपने बताया कि मौसम बारिशों के बाद अब हमारे पास में जो मसला आ रहा है वो सफेद मक्खी, बालग और उसके बच्चों का आ रहा है। इसके अलावा सबज केला भी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीम मोहम्मद यासीन ने काश्तकारों को वार्निंग जारी कर दी है कि बारिशों के बाद सफेद मक्खी, बालिग और इसके बच्चों का हमला बढ़ गया है और इसके साथ साथ गुलाबी सूंडी का खदशा भी जाहिर किया है। ये हमला फसलों के लिए खतरनाक है, जिसे हर सूरत कंट्रोल करना चाहिए। काश्तकार माहिरीन के मशवरे से स्प्रे को बर वक्त यकीनी बनाएं ताकि कपास की फसल को नुकसान से बचाया जा सके। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी का एहसन इकदाम, पहली बार ऑनलाइन कोर्सेज का आगाज कर दिया गया।
वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी ने कोरोना के बायस पहली बार ऑनलाइन कोर्सेज का आगाज कर दिया। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर टेफ्टा बहावलपुर मुंसिफ सुहेल का कहना था कि 3 तरह के ऑनलाइन कोर्सेज के लिए 10 सितंबर तक अप्लाई किया जा सकता है। 10 सितंबर तक इसकी लास्ट डेट है। इंशाल्लाह 15 सितंबर से इसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। तो हम लोग अर्ज करते हैं सारे बच्चे बच्चियों से कि वो इसमें ज्यादा से ज्यादा अप्लाई करें। सुहेल मुंसिफ का कहना था कि ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए लोग घरों में बैठकर बेहतरीन और बाइज्जत रोजगार हासिल कर सकेंगे। पहले मरले में 32,000 लोगों को दाखिला दिया जाएगा। ये बेसिकली 3 प्रोग्राम्स हैं जी, जिसमें ई रोजगार टेक्निकल, ई रोजगार क्रिएटिव और वर्चुअल असिस्टेंट। इसके अंदर जितने भी बच्चे बच्चियां हैं दुनिया में कहीं से भी वो अप्लाई कर सकते हैं और इनको हासिल करने के बाद वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो ऑनलाइन अपनी अर्निंग डॉलर्स में कर सकें। मुंसिफ सुहेल का मजीद कहना था कि ई रोजगार, ई क्रिएटिव और ई वर्चुअल पर 15 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को तरबियत दी जाएगी, जो घर बैठे दुनिया भर से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम करके अच्छा रोजगार हासिल कर सकते हैं। कैमरामैन शाह सकलैन हैदर के साथ अतल अशारी, बहावलपुर। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सरगोदा आर्ट काउंसिल में यौम दिफा के हवाले से तकरीब, ये रिपोर्ट देखिए। सरगोदा आर्ट काउंसिल में यौम दफा पाकिस्तान की मुनासबत से म्यूजिकल परफॉर्मेंस पेश की गई। नौजवान गुलकारों ने मिल्ली नगमे पेश करके 1965 की जंग के शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया। मौका पर डायरेक्टर आर्ट काउंसिल गुलाम अब्बास और नौजवान गुलकारों ने शिरकत की। डायरेक्टर गुलाम अब्बास का कहना था कि नौजवानों के जज्बे आज भी बुलंद हैं और वो पाक फौज के शाना बिशाना खड़े हैं। सरगोदा डिवीजन ने भी यहाँ पर हमारे लोकल जो यंगस्टर्स थे, यूथ जो थी, उनका एक मिली नगमों का एक प्रोग्राम किया है यहाँ पर, जिसके ज़रिए से हम जो है वो ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं 1965 की जंग में किरदार अदा करने वाले तमाम अफवाज पाकिस्तान को, शायरों को, अदीबों को, गुलकारों को, कंपोजर्स को और म्यूज़िक रिकॉर्ड करने वालों को, और जिनके दिल गरमा देने वाले जो मिली नगमे थे वो सुन के अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान का जो है वो दांत खट्टे कर दिए। शुरका का कहना था कि शोहदा को कभी नहीं बुलाया जा सकता। अगर आज भी दुश्मन ने मैली आंख से देखा तो उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। आपने पीस तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आज हम आपको शहर मुल्तान के मुनफरिद ग्रीन पीस के बारे में बताते हैं, जिससे उठने वाला धुआं शहरियों को अपनी तरफ माइल कर रहा है। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के बासियों के लिए मुनफरिद तर्ज का ग्रीन चिकन पीस तैयार होने लगा। ग्रीन चिली, धनिया पत्ती, धनिया पाउडर, लेमन, ग्रीन जीरा, नमक और व्हाइट पेपर की आमेजी से तैयार होने वाला ये है मुल्तान का ग्रीन पीस। इसका खस्तापन और रंग इसे दीगर पीस से मुनफरिद करता है। सर, ये ग्रीन चिली में तैयार होता है। ये सबसे मुनफरिद चीज़ है ग्रीन चिली, क्योंकि जो भी पीस बनता है उसमें ग्रीन चिली नहीं डालती। रेड मसाले में रेड मसाला होता है, ठीक है। ये ग्रीन चिली में तैयार होता है, इसलिए इसको ग्रीन पीस का नाम दिया गया। ये ग्रीन चिली में तैयार होता है, इसके अलावा और कोई वाइपर नहीं डालते। दुकानदार का कहना है कि ग्रीन पीस बनाने के लिए मयार के साथ साथ SOPs का भी खास ख्याल रखा जाता है। यही वजह है कि शहरी दूर दराज से ग्रीन पीस खाने के लिए आते हैं। मैंने मुल्तान का ग्रीन पीस का मशहूर का सुना था, स्वाद तिक्के वालों का। मैं चौकशाबाद से स्पेशली तौर पे इनके पास चल के आया कि ग्रीन पीस का टेस्ट कैसा है कैसा नहीं है। लोग बहुत शौक से खाने के लिए आ रहे। कोयलों की हिद्दत से भाप उड़ाता ग्रीन पीस का धुआं रात गए तक शहरियों को अपनी तरफ माइल करता रहता है। कैमरामैन मोहम्मद हारून के साथ वसीम शहजाद, मुल्तान। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना।